नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूँ. PET Limited incurred loss in the business current quarter of financial year 2018. The company has declared dividend at the rate of 12, 15, and 18 respectively in the preceding 3 financial years. In spite of the loss, the board wants to declare dividend, that is interim dividend, at the rate of 15% for the current financial year. Examine with reference to the PET Limited, say the provisions of interim dividend under Companies Act. इन्होंने क्या कहा है इंटर डिविडेंड के अंदर कि अगर आपने प्रॉफिट किया है तो इज नो लिमिट, लेकिन अगर आपने लॉस किया है तो आपका डिविडेंड कितना होना चाहिए? Average rate of 3%. एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स. डू यू एग्री? Yes, sir. 12, 15 और 18 कितना होता है? 12, 15, 27 और 18, 12, 15, 27 कितना हुआ? 45, right? 45 by 3 is 15. Can they declare 15? Yes or no? Yes. Yes, sir. So within 15% में एवरेज ऑफ 3 इयर्स में आता है. आर यू क्लियर? Yes. Yes, sir. 4 मार्क्स. सो कैसे लिखने का? वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ. अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल ऑफ कंपनी एक्ट 2013, a company may declare a board of a company may declare interim dividend at a rate not exceeding average of last 3 years in case where the company has incurred a loss in the current quarter. In the present case, PET Limited has incurred a loss, so that the last year's dividend comes to 12 plus 15 and 18. Therefore, the average of last year's comes to 15%. That is the maximum amount what they can declare as dividend. Therefore, the declaration of dividend of 15% by the company is within the provisions of the law. Next question is Alpha Limited. Alpha Limited, a Section 8 company. What is the meaning of Section 8 company, guys? NPM. NPM is a planning to declare dividend in AGM for the financial year 18. Mr. Chopra is holding 800 shares as on date. State whether the act of company is according to provisions of the act or not. ये कह रहा है कि क्या एक Section 8 company declare dividend कर सकती है या नहीं कर सकती? नहीं कर सकती. What will write? According to the provisions of Section 8, that is non-profit organizations, a license to get company as NPO requires a company to get prohibited in terms of paying dividend. Therefore, every company which is a Section 8 company shall be prohibited to declare dividend. सिर्फ कितने मार्क का क्वेश्चन देखो तो ध्यान से, 2 मार्क का. इसलिए आपको यहाँ पे लेंदी लिखने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा स्मार्ट बनना था. अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहा है. मैं क्वेश्चन नंबर, अरे पब्लिक, तुम लोग को मैंने बोला था कि 2A 2B 2C 2D लिखने का. तुम लोग लिख रहे हो नोटबुक पे? नहीं लिख रहे होंगे, नहीं लिख रहे होंगे. तुम लोग लिखा ये सब? नहीं लिखा ना? लिखा. गौसिया लिखा क्या? Yes, sir. Question number 2B. As per the provisions of Companies Act 2013, every company is required to file with ROC annual return as prescribed in MGD 7. Explain the details required to be contained in it. अब ये डिटेल्स यहाँ तक आप भूल सकते हो अगर आपको याद ना हो तो, लेकिन अगर मैं याद कर रहा हूँ तो हर साल जो रिटर्न फाइल होता है उसके अंदर जनरली क्या होगा? आपके कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स का डिटेल्स, आपके लोन का डिटेल्स, आपके मेंबर्स का, प्रमोटर्स का, डायरेक्टर्स का, केएमपी का कुछ भी चेंज हुआ हो उसका डिटेल्स, आपके रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर उस और केएमपी का डिटेल्स, आपकी ऑफिस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, आपकी होल्डिंग डिटेल्स, सब्सिडियरी, एसोसिएट कंपनी का डिटेल्स. ये आपको बाय हार्ट मैंने आपको एक बताया नोट में. रिमेंबर दैट इन योर मीटिंग्स के नोट्स डिटेल्स दिए थे सेक्शन 92 के अंदर का कंटेंट क्या होगा. रिमेंबर? Yes. मैं ट्राई कर सकता हूँ थोड़ा सा, शायद तक आपको याद तो होगा ही. Can you see the screen here? Yes, sir. यहाँ पे आपका 92 जो आया, देखो ये वाला. Can you see the details here? Content और रिटर्न. डोंट बाय लिखा है मैंने, एक बार पूछा है. देखो क्या लिखा है? एड्रेस, शेयर डिबेंचर्स डिटेल्स, डेट इंडेटनेस, डिक्लेरेशन, चेंजेस ऑफ डायरेक्टर्स, मेंबर्स, प्रमोटर डायरेक्टर्स, केएमपी के डिटेल्स कितने चेंज हुए वो, एंड रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स. कैन आई मूव फॉरवर्ड? फॉलो प्लीज. यस. Yes, Yes, sir. Yes.
सी मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप इसको मेरे साथ बाय हार्ट करो, मैं ये चाहता हूं कि आपके अंदर दो चीजें क्लियर हो। एक, हाँ सर मैं आराम से 90 95 का पेपर इजीली अटेम्प्ट कर सकती हूँ, मुझे बाय हार्ट नहीं करना है। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि आपने अभी तक रिवीजन किया है या नहीं किया लास्ट रिवीजन, पर डेफिनेटली जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैंने ये पढ़ा हुआ है। ये क्वेश्चंस को देख के आपको ये आइडिया आ जाएगा कि वी हैव डन इट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट योर कॉन्फिडेंस इन डूइंग दिस। सब लोग है ना पहले रिवीजन करके पेपर सॉल्व करते हैं, मैं उल्टा कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और आई फील दिस इज द बेटर वे टू डू इट, बिकॉज जब आप रिवीजन करोगे तो आपके माइंड में पेपर्स होंगे। इसीलिए B draws a check of rupees 11,000 and gives it to B by way of gift. State whether B is a holder in due course or not. क्या अगर गिफ्ट में चेक दिया हो गया तो क्या बी होल्डर इन ड्यू कोर्स बनेगा कि नहीं बनेगा अंडर नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट? नहीं बनेगा। नहीं, क्योंकि क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स रेफरेंस कहता है गुड फेथ पे मैच्योरिटी के पहले और विथ कंसिडरेशन होना जरूरी है। डू यू एग्री? ठीक है। Yes. तो यहाँ पे जो ड्रॉ किया है एज होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्या वो एक्चुअली होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाएगा? आंसर इज नो, आंसर इज नो। लेकिन क्या उसे वो पैसे मिल सकते हैं? डेफिनेटली यस, तो ये होल्डर तो माना जाएगा कि नहीं? हेलो, Yes. Yes, sir. होल्डर है, उसके नाम पे चेक दिया गया है, होल्डर मतलब को जिसके नाम पे हो जो एंटाइटल्ड हो तो पैसा तो मिलेगा, लेकिन होल्डर ड्यू कौन है? होल्डर है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ये आपने क्या किया? ये आपका क्वेश्चन हुआ 4 2 6 देन 6 12 देन ये 4 मार्क का ये, और ये आता है नेक्स्ट वन। Bholenath draw a check in favor of Surinder. After having issued a check, Bholenath requested Surinder not to present the check for payment and gave a stop payment request to the bank. Decide whether the act, इस एक्ट को क्या हम ऑफेंस कहेंगे या नहीं कहेंगे? एवरीवन टेल मी। नो सर। कहेंगे। नो? कहेंगे सर। Yes. यस ना? Yes, sir. स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट करना को भी हम क्या मानेंगे? बाउंसिंग ऑफ चेक मानेंगे। 138 अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? हेलो, 138 अट्रैक्ट होगा ना दोस्तों? Yes, sir. According to the principles of section 138 of Negotiable Instrument Act, when a check, when any check drawn for consideration has been dishonored due to non-payment, the person that is the drawer shall be liable as an offense under section 138. यहाँ पे आपने फाइन लिखी थी और आपका imprisonment लिखा था up to 2 years. अब वहाँ पे लिखा है कि even if the stop payment order has been made by the drawer, it shall be deemed to be dishonor of check and the offense shall be covered up in that part also. Yes, guys, moving forward. Guys, are you see, I don't know, लेकिन तुम लोगों को मैं जो कह रहा हूँ यहाँ पे, I repeat again, मेरा काम है तुमको क्वेश्चंस को दिखाना और समझाना कि आपको ये आता है, बाय हार्ट करवाना मेरा काम नहीं है। I am getting you accustomed to this. Are you getting my point? Yes, sir. क्या लिखा है यहाँ पे? TDL Limited, a public company, is planning to bring public issue of equity shares in June. The company has appointed underwriter for getting its shares subscribed. As a CA of the company, appraises the board of TDL about the provisions of payment of underwriting commission as per the Companies Act 2013. क्या आपको याद है अंडरराइटिंग कमीशन को पे करने के रूल्स क्या थे? ये पूछेगा यहाँ पे। नंबर 1, आर्टिकल से अप्रूवल चाहिए। डू यू एग्री? Yes, sir. नंबर 2, अंडरराइटिंग कमीशन जो होगा वो सिर्फ पब्लिक के नहीं, जो सिर्फ पब्लिक को इशू किए उस पे होगा, यहाँ पे प्रमोटर्स को जो इशू किया उस पे नहीं हो सकता। नंबर 3, उसका रेट जो होगा वो कितना होगा? 5% फॉर इक्विटी और एओए या फिर 2.5 फॉर डेट और एओए, व्हिचएवर इज लेस। डू यू एग्री? Yes. Yes, sir. इट कैन बी इन कैश और काइंड। डू यू एग्री? Yes, sir. Yes. अंडरराइटिंग कमीशन में भी इन कैश और काइंड, एंड अंडरराइटिंग कमीशन जो है इट कैन बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल। डू यू एग्री? Yes, sir. ये चीज Yes, यहाँ पे sir. आपको ऐड करनी है। एक सेकंड होल्ड करना, मैं चार्जिंग पॉइंट ऐड कर रहा हूँ।
I will not take much of your time. अगले 25 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व करके दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन है, 2 हो गए हमारे, मैं थर्ड पे आया हूँ। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऑडिटर के ऊपर है, और आपको पता है मैं ऑडिटिंग पढ़ाता नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 3AB मैं आपको रीड करके दे दूंगा, बट आई एम सॉरी, जो मेरा काम नहीं है वो मैं नहीं करेगा। रूपा लिमिटेड लिस्टेड कंपनी अपॉइंटेड VG and Associate as audit firm as company's auditor in AGM. Explain the provisions of Companies Act relating to appointment of auditor and its tenure of auditor. Guys, ये मैं तो नहीं पढ़ा था आपको, लेकिन क्या आपको समझ में आया क्या क्वेश्चन है? हाँ सर। Yes, sir. Even the same second question is also on the same stuff. दो क्वेश्चन ऑडिट ऑफ कंपनीज पे आया है, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1C आया है रिपील पे। डू यू रिमेंबर हमने रिपील सेक्शन 6 में किया था, GCA में, इफेक्ट ऑफ Yes, रिपील। sir. इन्होंने पूछा है कोई भी 4 रिपील बताइए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कोई भी 4 रिपील। रिपील, कुछ रिपील शैल नॉट रिवाइव एनीथिंग जो पहले एनफोर्स नहीं हुआ था। रिपील प्रायर मैनेजमेंट के कोई भी एक्शंस को कैंसिल नहीं करेगा। रिपील पहले मैनेजमेंट ने जो भी क्लेम, प्रिविलेज या रिस्पॉन्सिबिलिटी या डेट यूज किए उसे कैंसिल नहीं करेगा। रिपील ने जो भी पहले पनिशमेंट, फॉरफीचर या पेनल्टी सस्टेन करी है उसे वो कैंसिल नहीं करेगा। रिपील कोई भी इंक्वायरी, लिटिगेशन या रेमेडी जो पहले से इनिशिएट की गई थी उसे वो कैंसिल नहीं करेगा। रिपील मतलब कैंसिल करना, बट ये सब चीजें कैंसिल नहीं होती। हमने, आपको याद होगा ये 4 चीज है, इन्होंने कोई भी 4 पूछे, इन्होंने लिखे हैं 5, एग्जाम में कोई भी 4 पूछे गए हैं आपके लिए। ओके, तो रिवाइव नहीं कर, क्या रिपील क्या नहीं करेगा? रिपील पुराने कामों को कैंसिल नहीं करेगा। रिपील में जो क्लेम, प्रिविलेज, बेनिफिट जे दी गए उसे कैंसिल नहीं करेगा। रिपील पुरानी पनिशमेंट, फॉरफीचर, पेनल्टी को कैंसिल नहीं करेगा। पहले से जो इंक्वायरी, लिटिगेशन चालू हो चुका है उसे वो कैंसिल नहीं करेगा जब कानून रिपील होता है। आपको कुछ याद आ रहा होगा जो मैं कह रहा हूँ। अब ये पहला क्वेश्चन अभी आ रहा है जो मैंने डायरेक्टली नहीं पढ़ाया है, इनडायरेक्टली पढ़ाया आपको, मैं उस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में लास्ट क्वेश्चन जो है ये वाला, डिफरेंशियल बिटवीन मैंडेटरी प्रोविजन एंड फ्रॉम डायरेक्ट प्रोविजन। क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन? ये मैंने आपको सिखाया है बट आपको कभी लिखाया नहीं है। याद आ रहा है क्या लिखा है इधर? एनीवन कैन हेल्प मी हियर? सर iOS का है वो यस, स्टैच मैंडेटरी एंड डायरेक्टरी। में और शाल होता है गवर्नमेंट के लिए और पब्लिक के लिए, वैसा कुछ। एग्जैक्टली, तो इन्होंने यही बोला है कि मैंडेटरी प्रोविजन में फ्रॉम डायरेक्ट प्रोविजन में फर्क क्या होता है। ये कहता है कि मैंडेटरी वर्ड से, तो मैंडेटरी इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल वर्ड इज कंपल्सरी एंड डायरेक्टरी इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल वर्ड इज व्हाट, व्हिच इज नॉट एन मैंडेटरी इन नेचर। डू यू एग्री? यस सर। However, यहाँ पे एक कीवर्ड आएगा coupled with duty. Do you remember this word when it is coupled with duty? एक सेकंड, can you see this word coupled with duty? मैंने आपको कहा ना, you may come early next class, उसका मतलब क्या होता है? जब आप लेट आए हो क्लास में, मैंने बोला यू मे कम अर्ली नेक्स्ट क्लास, का मतलब क्या होता है? मे शाल है कि मे है? इट इज योर ड्यूटी टू कम नेक्स्ट क्लास फास्टर ऑन टाइम। आई एम नॉट गिविंग यू ऑप्शन टू दैट। मतलब ये होता है कि जब आपका कोई भी ड्यूटी, सॉरी, जब आपका कोई भी पावर आपके ड्यूटी से कनेक्ट हो जाता है तो वो प्रोविजनली वो जो डायरेक्टरी वो क्या हो जाएगा? मैंडेटरी हो जाए। अगले बार से तू थम्स अप मत पीना तो अच्छा होगा। इसका मतलब ये हमें ऑप्शन नहीं दे रहा है, वो कह रहा है कि भाई थम्स अप पीना बंद कर, एग्जाम आजू बाजू आ रही है। इट्स लाइक इट इज टेलिंग यू कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर बार शब्द से देख के नहीं, उसकी कंटेंट को समझ के हमें समझ में आना चाहिए। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कॉन्सेप्ट, मतलब इसको हमें ना गाइस कभी भी लिखेंगे ना, इट शुड बी इन योर नॉर्मल वर्ड्स कि प्रैक्टिकली द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोविजन व्हिच मैंडेटरी एंड डायरेक्टरी strictly says that mandatory refers to something which is a compulsion and directory refers to something which is not mandatory in nature. However,
substance may be referred over form, and in substance over form, there might be a situation something which is directory may become mandatory, and something which may become directory. Do you agree? ये आप लोग Yes. लिख लेना कस्टमर 3D. 3D आपको कभी रेफर करना चाहिए. 3D, the first one out of all till now what we did. हमने 3 क्वेश्चन खत्म कर दिए, सिर्फ 3 बाकी है, 4, 5 and 6. Going forward क्वेश्चन नंबर 4. कल से हम लोग एक FM और एक लॉ ले रहे हैं. मे बी आई एम डूइंग विद फॉर द फर्स्ट टाइम. पहले एफ लॉ खत्म करेंगे और एक FM को टारगेट करने की कोशिश करेंगे. तो 60 मार्क का FM और 100 मार्क का लॉ रोज पेपर करते जाएंगे. आपको लगे कुछ चेंज करना है, ऐसा इतना मत करो. वॉट एवर यू कैन प्लीज टेल मी. नेक्स्ट इज, कंपनी ने AGM कॉल किया है, बट quorum ना होने से मीटिंग कैंसिल हो गई. The directors did not file annual returns with the registrar. Directors were of the idea that it has to be filed within 60 days from the date of AGM. AGM तो कैंसिल हो गई थी, इसलिए उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया. क्या डायरेक्टर ने गलत काम किया या नहीं किया? What is the last date of hold? What is the last day to send documents? ये लिखा है ना, सेक्शन 92 में लिखा था ना ये बात. ये डॉक्यूमेंट्स कब सेंड होने चाहिए? Can you see here? Can you see here? Hello. Yes. पढ़ो एक बार. गाइस बड़ा हाँ सर. क्या है आंसर? कंपनी हैज कॉन्ट्रावेंड और नॉट? हेलो Contra. कौशिया, क्या मुझे आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. आप मुझे आंसर लिखोगे कैसे वो बताओ. ओरली नेचुरली लिखो आंसर एज इफ यू आर राइटिंग द एग्जाम्स. For Abhi. हाँ अभी डोंट वरी, गलत कुछ नहीं होने वाला. कम ऑन, यू कैन डू इट. So 2 minutes. हाँ So मैं बोलूं? यस यस. So according to section 92 of the Companies Act 2013, every company shall file with the registrar the annual return within 60 days from the date of the AGM. वेरी गुड. In the present case, the directors. एक मिनट आपने परफेक्ट बोला. आगे ये बोला, अगर AGM नहीं हुई तो क्या लिखोगे प्रोविजन में? In case of AGM is not held within the due date, then it has to be filed within how many days? 60 days from the date of AGM. From the end of the date on which AGM should have been Yeah, held. held. ठीक है, very good. उसके बाद In the present case, the directors. In the present case, the AGM was not AGM been was held. cancelled. हाँ. Yeah, the AGM was cancelled. The provision requiring Due to the want of quorum, the was meeting was not correct. हाँ. Then it should be held within the six months from the date of closing of the financial year. The company has contravened the provisions of the section 92 ठीक है. for not filing the annual return. यहाँ पे ध्यान देना. इन्होंने very good cost. It's a very good try. इतने constant time. Now what you have to write further is, according to the provisions of the Act, the annual return shall be filed within 60 days on the date of AGM. However, if AGM is not held due to the want of quorum or any other reason, then it shall be filed within 60 days from the last date on which AGM should have been held. In the present case, since AGM was not called for the want of quorum, the company should have filed
the same from the last date on which AGM should have been held, that is from 30 सितंबर से 60 दिन के अंदर आपका फाइल हो जाना चाहिए था। और इन्होंने ना एक मस्ती की है यहाँ पे, पेनल्टी पूछी। क्या पूछी है यहाँ पे? पेनल्टी। मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि पेनल्टी के मार्क्स हमें न्यौछावर हमें सरेंडर करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसी तो 1000 पेनल्टी है इस एक्ट के अंदर। हमारा आंसर यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए कि if yes the company is contravened for the act and they will be penalized as per the provisions as contained under the act 2013. That's it. मैं पेनल्टी आपको इसकी वायद करवा भी सकता हूँ, बट मैं कितनी पेनल्टी वायद करना बेटू? वायद मुझे नहीं, वायद तो आपको करना है। तो इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली कि आप हर चीज के वायद करने बैठो, तो उसके मार्क को छोड़ दो। इसमें आपका एक मार्क एट एनी कॉस्ट जाना ही जाना है, क्योंकि आप पेनल्टीज को बाय हार्ट नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन नंबर ए बी जो है, सॉरी 4B जो है, वो फाइनल सी कॉन्सेप्ट है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे पूछा है इंटर में। आपको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा वो पार्ट। देखो ये 4A है, अब 4B पे जाओगे ना, 4A सेक्शन 92 है जो हमें पता है, लेकिन 4B जो है यहाँ पे ये सेक्शन आप लोग के सिलेबस का नहीं है, इट इज सेक्शन 148 के आगे। अब यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट पूछा गया है ये सीए फाइनल का कंपनीज एक्ट का कॉन्सेप्ट है, बस सिंस पूछा गया तो मैं आपको सिखा देता हूँ, तो आप इसको मार्क करना, क्योंकि आउट ऑफ द सिलेबस है, आपके पास नोट्स या कोई भी मॉड्यूल में मिलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 4B कहता है Bensal Limited issued a notice with agenda for how many business? 9. To be decided in an AGM. Two business were regarding appointment of Mr. Sahu and Mr. Pranav as directors. फिर मैंने सोचा कि हम इस दोनों को decided to move resolution for all 9 businesses together to save the time. Examine the validity. ये कह रहा है से आपको तो समझाना पड़ेगा मुझे। ये टोटल कितने मेजर एजेंडा थे बताओ मीटिंग के अंदर? टोटल 9। ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9। समझो एजेंडा नंबर 1 है कि हमें हमारा ब्रांच ओपन करना है एक और गुजरात में। नंबर 2 हमें इसको अपॉइंट करना है। नंबर 3 हमें ऑडिटर को रीअपॉइंट करना है। नंबर 4 हमें रेम्यूनरेशन बढ़ानी है। नंबर 5 हमें बोनस देना है। नंबर 6 हमें ईसॉप इशू करना है। नंबर 6 ईसॉप इशू। नंबर 7 हमें राइट्स इशू करना है। नंबर 8 डिविडेंड डिक्लेयर करना है। नंबर 9 हमें सीएसआर पॉलिसी क्रिएट करनी है। क्या अलग अलग है? सेम है। 9 के 9। हेलो। अब मैं ये कहूँ सब लोग मेंबर्स सब लोग एक्सेल और साथ में कर लेंगे, और साथ में करने के लिए सब लोग हाँ बोलो या ना बोलो, क्या ये पॉसिबल है? सबकी या तो हाँ ना, कैन आई से दैट? किसी की इसमें हाँ हो सकती है, 1 में, 2 में हाँ हो सकती है, 3 में ना, 7 में ना, 9 में। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता। तो हर एक रेजोल्यूशन को इंडिविजुअली डिस्कस करना चाहिए कि साथ में लेना चाहिए? इंडिविजुअल। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है पता है? कि साथ में करना चाहिए था। क्या आपको लगता है वैलिड होगा या वॉइड होगा? वॉइड होगा। वॉइड, क्योंकि अलग अलग करना चाहिए था। डू यू एग्री? यस। इसका एक एक्सेप्शन है। इसका क्या है पता है? एक एक्सेप्शन है। क्या है? इसमें लिखा है एक्सेप्शन में, फाइनल सीएम के कंटेंट में आता है ये कि अगर सब लोग, बात करते हैं, अगर सब लोगों ने यूनानिमस कंसेंट दी, क्या दे दिया? यूनानिमस कंसेंट। फिर आप ये कर सकते हो। सबको पूछा गया कि हम लोग सब साथ में करने वाले हैं, क्या कोई किसी को कोई एतराज है? किसी ने मना नहीं किया। फिर पॉसिबल। आर यू क्लियर व्हाट आई सेड? यस सर। ये मुझे नहीं लगता वापस कभी आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है ध्यान से देखो। स्टेट एनी 4 कंटेंट्स ऑफ डीआरएस, डायरेक्टर रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट। मैंने आपको याद है, आपको मैंने 8 से 10 दिए थे, रिमेंबर? किसी ने रिवाइज किया है? कोई 4 पूछे एग्जाम में। इसमें क्या क्या आ सकता है? डिविडेंड डिक्लेयर करना डीएस में आ जाएगा। नंबर 2 सीएसआर कमेटी आ जाएगा। ऑडिट कमेटी, आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, आपकी अकाउंटेंसी की थियोरी क्या है,
कंप्लायंस ऑफ लॉ क्या है, वो सब डीआर स्टेटमेंट में आएगा. डू यू रिमेम्बर दिस? Yes, sir. फिर एनर्जी कितना आप यूज कर रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज कितना यूज कर रहे हो, वो सब भी आपके डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में आएगा. कितना डिविडेंड प्रपोज किया था, कितना डिक्लेयर किया है, कितना इंटरिम दिया है, कितना डिक्लेयर किया है, ये सब आपके डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में आएगा. तो मैं आपको वापस दिखाऊं यहाँ पे, प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, सिलेक्शन अकाउंटिंग पॉलिसीज, maintenance of books of accounts, going concern, whether you have paid going concern basis or not. अब कोई भी यूज का ऐसे कौन सा 20-25 थे, मैंने आपको 134 to 138 वाले नोट्स में दिया था, वो रुक जाओ. Can you see the screen here? हेलो. Yes, sir. देखो whether मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, देखो क्या लिखा है, I had any 5. 5. कितने पूछे एग्जाम में? 4. डिविडेंड डिक्लेयर कितना किया है, मैंने ना सबसे शॉर्टकट वाले लिए, जो आपको उन्होंने दिए भी है और आपके लिए इजी हो जाए. वैसे एएस फॉलो किया या नहीं, अकाउंट बराबर मेंटेन किए है या नहीं, गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रूव किया है या नहीं, डिविडेंड प्रपोज बोर्ड ने कितना किया है, प्रपोज टू ट्रांसफर रिजर्व्स कितना है, सीएसआर अमाउंट डालेंगे कितना, क्या स्टेप्स लिया आपने एनर्जी को बचाने के लिए, क्या स्टेप्स लिया आपने टेक्नोलॉजी को ऑब्जॉर्व करने, ऑब्जॉर्व मतलब इंपोर्ट कम करने के लिए, कितना फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आया, कितना गया. आर यू क्लियर विद दिस गाइस? Yes, sir. अगर हमने 4-5 पेपर सॉल्व कर लिए ना गाइस, इट विल अगेन बूस्ट अप ओवर 5-7 to 10 मार्क्स. जितना आपको अभी आएंगे उससे 10 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे जब आपके पास 4-5 पेपर किए हो. नेक्स्ट वन, कौन सा दिमाग के लिए, कौन सा दिमाग के लिए, कौन सा दिमाग के लिए. Okay, do you remember the word document, guys? Hello. Yes, sir. What is the meaning of the word document? इन्होंने पूछा है, कितने मार्क के लिए? सिर्फ 2. और यहाँ पे क्या पूछा है, what do you mean by which interpretation? Grammatical. Grammatical interpretation यानी literal interpretation. कौन सा वाला गाइस? Literal. लिटरल मतलब क्या, जो भी मीनिंग दिया गया लॉ से वही मीनिंग यूज करना, हमें सोचने की जरूरत ना पड़ता. आप लोग क्या लिखोगे इसके अंदर, ग्रामेटिकल में आप वही लिखोगे जो लिटरल में पढ़ा है. और डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन आपको याद होगा तो मीन्स, रिकॉर्ड्स, याद है? Yes, sir. सब्सटेंस दिखाता हूँ मैं आपको, चलो एक और बार याद हो जाएगा. It means any letter, any matter expressed or described upon a substance by means of letters, figures, marks, or by means of this means intended to be used or which may be used for the purpose of recording the matter. फिर मैंने इसमें और चार चीजें ऐड की थी, मीनिंग ऑफ द वर्ड मैटर, सब्सटेंस, मीन्स, डू यू एग्री, एंड रिकॉर्ड, एंड देयर वाज वन मोर, दैट इज रिकॉर्ड. आर यू क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट वन, वापस ऊपर जा रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ बचा क्या इसके अंदर. डू यू रिमेंबर दिस सर्विस ऑफ बाय पोस्ट एज पर जीसीए, 2 मार्क का पूछा है, याद है वो पोस्ट, उसमें हमने ये लिखा था पोस्टिंग में कि आपके जब आप सर्विस डालोगे तो वो एड्रेस बराबर होना चाहिए, प्री पेइंग होना चाहिए और रजिस्टर्ड पोस्ट होना चाहिए, तो ही उसको सर्विस बाय पोस्ट माना जाएगा. इसके अलावा हमने 3 केस लॉ देखे थे, रिमेंबर 3 केस लॉ देखे थे हमने यहाँ पे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 मार्क के लिए पूछा तो केस लॉ लिखे नहीं है, 2 मार्क का पूछा है. मतलब आपने सर्विस दी पोस्ट से, कैसे प्रूव होगा, प्रॉपर एड्रेस, प्रीपेड एंड रजिस्टर्ड पोस्ट यूज किया होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं हम लोग. 5 विल बी योर लास्ट वन, ऐसा देखा जाए, क्योंकि 6 तो आपका ऑप्शनल होता है, तो हमने, आप 6 पे जाओगे, चलो मैं एक उल्टा करता हूँ कुछ, पहले मैं 6 पूरा करता हूँ और फिर मैं आता हूँ 5 पे, क्योंकि कोई भी एक चूज करना है हमें. ये आपके ABCD 4 क्वेश्चन है 5 पे, 6 पे, फिर 5 देख लेंगे. Can equity share with different shares be issued? Yes or no? Yes, DVR sir. issue हो सकता है. Do you remember the condition of DVR? याद है? Yes, sir. AOA होना चाहिए, वोटिंग होना चाहिए, OR पास करना चाहिए, 26% ऑफ शेयर रहना चाहिए,
प्रॉफिट्स होना चाहिए लास्ट 3 साल के अंदर. रिमेंबर दैट ऑल 8-9 कंडीशंस. Yes, Then you have to sir. write it down. उसके बाद explain the term charge. When do you have to register the charge or the time you have to register charge? I hope you are getting this. वापस charge की चैप्टर से simple question 6 मार्क का. हेलो. Yes, sir. ठीक है. Rahul, a transporter was entrusted with the duty of transporting tomatoes from rural areas to city by Ashwin. Heavy rains की वजह से राहुल ने क्या किया? वो 2 दिन का लटक गया था. उसने क्या किया? टमाटोस को बेच दिए मार्केट रेट से कम दाम पे नियर बाय मार्केट में, क्योंकि उसे डर था कि मार्केट में टमाटे खराब हो जाएंगे. क्या अश्विन राहुल से ये लॉस रिकवर कर सकता है या नहीं हो कर सकता? No. क्योंकि ये नहीं. क्या है? इमरजेंसी है. यस और नो? No, sir. No, sir. Can he recover it? Yes or no? Answer is no. Do you As agree? a man of ordinary prudence, Has done in his own case due to emergency. Everyone. Yes, How sir. do we write it? As per the provision of Indian Contract 1872, an agent should actually work according to his authority. However, in case of emergency, he may exceed his authority to protect the principal from loss caused to it due to emergency, and as if he would do it in his own case as a man of ordinary prudence. Do you agree? Yes, sir. In the present case, Mr. Rahul, a transporter, due to the heavy rainfalls, he sold the tomatoes below the market rate in the nearby, so to avoid it to get perished. Therefore, in the present case, it was been done as an act of emergency in ordinary prudence. Therefore, Rahul could not be sued by Ashwin as the act was been done in emergency. Everyone. Yes, sir. Next, state the rules laid down by Negotiable Instrument Act for ascertaining the date of maturity. याद है आपको मैंने नेगोशिएशन के नोट्स में एक बॉक्स दिया था टेबुलर फॉर्मेट में, प्लस सीरीज ऑफ ग्रेस ऐड करते रहना है. हाँ सर. अगर हॉलीडे है तो नेक्स्ट सक्सीडिंग डे, अगर डिटरमिन हॉलीडे है तो प्री सक्सीडिंग डे, 3 days of grace, आफ्टर साइड, बिफोर साइड. डू यू रिमेंबर दैट? 5 मार्क के लिए. Yes. तो वो आपको पूछा गया यहाँ पे 5 मार्क के लिए. सोचो यहाँ पे भी होगा वही चीज. मैं दिखाता हूँ आपको, चाहिए तो देखो यहाँ पे. ये खत्म हो जाएगा स्लाइड. देखो, 3rd day आफ्टर डेट ऑफ मैच्योरिटी, 3 of days grace. उसके बाद हर एक सिचुएशन में मंथ्स है तो मंथ्स के बाद 3 days का ग्रेस. फिर अगर हॉलीडे है तो हॉलीडे के बाद का सक्सीडिंग डे, पेबल एट साइट, बिफोर साइट का पार्ट. ये पूरा समझ करके दिया है वो टेबुलर फॉर्मेट में, आपने देखा होगा तो वो भी कवर हो चुका है. अब मैं सिर्फ रिस्ट ज्वाइन कर रहा हूँ. मेरा एक क्वेश्चन बाकी है. हमारा एवरेज 45 मिनट्स के अंदर पूरा पेपर हो रहा है. होल्ड ऑन. इसको बंद कर दूं.